Okay. Good evening, everyone. So, hi, welcome to a video of French crash course. And students, हमने previous lecture के अंदर first chapter के related थोड़े बहुत grammar topics किए थे और zero chapter from our 12th standard textbook zero chapter के भी थोड़े बहुत topics किए थे. हमने I guess interrogative वाला part किया था what, why, when, where, how much, how many और थोड़ा पासे कंपोजिट वगैरह डिस्कस किया था. प्रोनाउंस भी डिस्कस किया था जो जीरो चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. लुक मेरे पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पर. वी कैन जस्ट स्टार्ट आवर डे विद दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 28 एंड पुट द इंटरोगेटिव. सो हमें इंटरोगेटिव डालना है, मतलब हमें ये देखना है कि वो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच वाला. So we did chapter 6 also. We did chapter 6 also. Prepositions. Yeah. So in the previous lecture, we had done chapter 6, also a small topic of preposition, which was just a revision of zero chapter. हमने वो भी previous lecture में किया था. Okay. चलो फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे आज के लेक्चर को. स्टूडेंट्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब आप लोग को आना चाहिए. चलो मैं एक एक पूछ जाऊंगा, आप लोग मुझे बताना. व्हाई को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? Pourquoi? Pourquoi. चलो, am I taking lecture with only one student or others are also there? Please tell me. Pourquoi. Okay, everybody has to answer. Okay, pourquoi. Nice. Second one, when. What is the word for when? W-H-E-N, when. वेरी गुड. चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे लिखते रहता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उनको थोड़ा. POUR पूर्वा मतलब वाई होता है स्टूडेंट्स. उसके बाद हम लोग ने वेन देखा था. वेन के लिए QUAND वेन होता है. हु, व्हाट इज द वर्ड फॉर हु? की होता है. ग्रेट. हाउ, व्हाट इज द वर्ड फॉर हाउ? कॉमो. ओके. व्हाट इज हाउ मेनी? Combia. So that is combia the. How many is combia the? How much? Combia is how much? Where, what is the word for where? OU graph आता है. OU graph. The accent with the line on top. Yeah, I know. चलो last. What is the word for what? क लिख सकता हूँ. क. ओके, वॉट लिख सकते हैं. चलो ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं खाली एक OU ग्राफ, यू के ऊपर वो सर्कमफ्लेक्स कर रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा ये नई बराबरी हो गया, दिख नहीं रहा बराबर से, बट ठीक है. सो स्टूडेंट्स हमने ये सारे वर्ड्स किए थे. लेट्स स्टार्ट. इस पार्ट को मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ. एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. पुट द इंटरोगेटिव्स. क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग है. फर्स्ट वन, इट सेज डैश थ्रू टॉ ले पिरामिड. इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्राई करो एकदम धीरे धीरे. डैश, व्हाट इज द वर्ड थ्रू? थ्रू मींस टू Find. Yeah, find. So dash one finds the pyramid. बताओ कौन सा क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में? Where. Where आएगा. So यहाँ हम यहाँ पे where लिख सकते हैं. तो where के लिए फ्रेंच में u वर्ड है. Where one finds, OU ग्राफ आएगा. ओके, one second. Yeah, OU ग्राफ. So where one finds the pyramid. When one finds the pyramid. Okay, great. ऐसा So the कुछ. line will come on U or O? The line. U. Okay. OU graph. Okay. Dash Eskil Naripa. Dash is it that he does not arrive? बोलो क्या आना चाहिए? Pourquoi? Yeah, but Why? very good. Pourquoi. Pourquoi. So why is it that he doesn't arrive? Why is it that he doesn't arrive? Next, third one, dash faites vous le dimanche. क्या आएगा बताओ? What. Okay, यहाँ पे क आना चाहिए. इंग्लिश में बताओ, मीनिंग बताओ क्या आएगा? What are you doing on Sunday? Yeah, nice. So what do you do on Sunday? What are you doing and what do you do on Sunday? Okay. After that, next, dash est le président de la France. QUI. Yeah, so Q. Who is the president of France? Very good, beta. Fifth one, dash journaux lisez-vous. Which. Yeah, which to which के लिए क्या है? QU. अच्छा, ये plural form है ना students? Yeah, QUELS आएगा because masculine plural. So I'm going to use QUELS. Which newspapers are you reading? Hey. Okay. Which newspapers are you reading? Next, after that, dash d'habitants y a-t-il en N? Meaning बताओ पहले. Where do you live in India? क्या है? Where? Do you नहीं. live in India? So yeah, students, dash citizens are there in India.
देखो यहाँ पे डी ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं खाली कॉम्बिया डालूंगा, कॉम्बिया। तो कॉम्बिया द का मतलब क्या होता है, कॉम्बिया द का मतलब क्या होता है? How many? या How सो हाउ much? मेनी सिटीजन्स, नहीं खाली कॉम्बिया मतलब हाउ मच होता है, पर यहाँ पे कॉम्बिया द है। सो हाउ मेनी सिटीजन्स आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी सिटीजन्स आर देयर इन इंडिया। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट, डैश ऐसा वो वाकॉन्स कमॉन्स, डैश dash is are it that your vacations are starting? कौन? Where? Yeah, very good. कौन आएगा? Nice. So when is it that your vacations are starting? When is it that your vacations are starting? 8-1 dash could said Shamiz. कॉम्बिया. Perfect, perfect, perfect. ये लर्न कर लो स्टूडेंट्स, कुत वर्ड है ना, बहुत कॉमन वर्ड है कॉस्ट के लिए, और ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है। सो ये आएगा ना कॉस्ट, कभी भी कॉस्ट, तो हमेशा आंसर कॉम भी आएगा। हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, how much does this shirt cost? Okay, next after that 9-1 dash voyage हुआ पारी, मीनिंग बताओ। dash you travel at Paris. वेरी गुड, dash you travel at Paris by plane, तो इंग्लिश में क्या आएगा? How? Where? कौन आएगा? हाँ देखो आंसर बाय प्लेन है, तो हाउ आएगा, हाउ डू यू ट्रैवल टू By. पेरिस, या हाउ आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस बाय प्लेन। नेक्स्ट आफ्टर दैट लास्ट डैश aimez-vous la ville de Paris, डैश डू यू लाइक द सिटी ऑफ पेरिस। You of Mumbai. क्यों पूर्व को आ सकता है ना, व्हाई डू यू लाइक द सिटी ऑफ पेरिस, व्हाई डू यू लाइक द सिटी ऑफ पेरिस, या मुंबई, व्हाई डू लाइक द सिटी ऑफ मुंबई। कोई और क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, ओके कि नहीं ये आना You चाहिए ऐसा can कुछ। say, हाँ, you can say how come है. हाउ डू यू लाइक द सिटी ऑफ मुंबई, हाँ. हाउ डू यू लाइक द I सिटी ऑफ know मुंबई, sometimes people हाउ ask. आई लाइक दिस, नहीं पता नहीं, हाउ डू यू फाइंड द सिटी ऑफ मुंबई बोल सकते हैं, हाउ डू यू लाइक तो ना होगा यार, हाउ डू Okay. यू फाइंड द सिटी ऑफ मुंबई साउंड समथिंग गुड टू मी इन इंग्लिश, हाउ डू यू लाइक द सिटी ऑफ मुंबई इज, इट साउंड्स स्टूपिड। चलो ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज नंबर 28 हो चुका है कंप्लीट, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता हुआ फिनिश, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम गोइंग टू कम बैक टू माय टेक्स्ट बुक नाउ, और टेक्स्ट बुक के अंदर स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये तू वाला पार्ट हमने किया था क्या? No sir. ओके, तो स्टूडेंट्स बस तू का एकदम सिंपल वे है, जैसे हमने एडजेक्टिव इंटरोगेटिव भी किया था, 4 टाइप के एडजेक्टिव इंटरोगेटिव होते हैं, कैल, QUELS। ओके, टेल मी फेमिनिन में क्या होता है, QUELLE. या फेमिनिन प्लूरल। QUELLES. चलो, तो सिमिलरली स्टूडेंट्स तू जो है ना वो भी 4 अलग अलग टाइप के होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नाउन। सो टेल मी मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए कौन सा आएगा? Same ही रहेगा। ना बाबा, TOUT रहेगा, TOUT। अब हाँ, अब बताओ प्लूरल में क्या आएगा, TOUT का प्लूरल क्या होगा, मैस्कुलिन प्लूरल, STS. या फेमिनिन क्या होगा स्टूडेंट्स, TOU E. E हो जाएगा, और फाइनली TOUTS हमारा फेमिनिन प्लूरल होगा। और इन सब सबका मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑल होता है, या तो एवरीथिंग होता है, या तो फिर कभी कभी एंटायर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। वी विल लुक एट द सेंटेंस एंड वी विल गेट टू नो एग्जैक्टली कि उसका वहां पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, विल सी दैट। ठीक है, Sir, भी होता है क्या? Whole. क्या हुआ अजय, आर्यन सॉरी, Whole. WHOL. या होल भी बोल सकते हो बेटा, एंटायर मतलब वही होगा, होल भी बोल सकते हो, तो एंटायर द होल, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में भी देखो क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं एक टीचर हूं और अगर आज मुझे एक पेपर फ्रेम करना है ना, मुझे पेपर, तो ये जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिए ना यहाँ पर हम लोग को, देखो ये सारे जो ऐसे इंग्लिश में और फ्रेंच में दोनों लिख के दिए, मैं आपको इसी में से कोई एक सेंटेंस उठा के इंग्लिश टू फ्रेंच के लिए दे दूंगा 2 मार्क्स के लिए। तो जब ये सारे सेंटेंसेस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, दैट मींस इट इज इम्प्लाइड कि आपको फ्रेंच का इंग्लिश और इंग्लिश का फ्रेंच दोनों आना चाहिए। अगर इंग्लिश में दिया हुआ है तो फ्रेंच में लिखना भी आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसी में से आएगा। ओके, दे आर नॉट प्लानिंग टू गिव यू एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मेरा ऑलरेडी बहुत जगह बात हो गया, बोल रहे हैं मोस्टली तो टेक्स्ट बुक में से ही देंगे, या तो फिर वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वो दिया हुआ है हमको वो तो बस उसी में से आने वाला है। तो बस इतना कर लो, काफी लाइफ में। Okay, sir. What you have written after everything? After everything, what you have written? होल, ऑल Okay. होल। चलो, Okay. on a decorate tutla mesa por Noel, so we decorated the whole house for Christmas. Okay,
तो ये कौन सा टेंस है? पासे कंपोज है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप लोगों को टेंस आइडेंटिफाई होना आना चाहिए। हमने पासे कंपोज थोड़ा थोड़ा देख लिया ऑलरेडी। सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कॉन्जुगेशन ऑफ avoir है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। चलो फटाफट रिवाइज करेंगे। बताओ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या रूल होता है? प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस verb. verb, वेरी गुड। फ्यूचर प्रोश में क्या होता है? Aler plus या सो अभी तुम लोग को ये लर्न होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को हर बार पूछता हूँ हर क्लास के अंदर, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आले प्लस इन्फिनेटिव। बताओ पासे रेसॉ स्टूडेंट्स क्या होता है? पासे रेसॉ सब्जेक्ट Your- प्रोनाउन Subject pronoun plus Verb any plus the plus infinitive. plus infinitive. वेरी गुड। चलो आई एम ग्लैड सो मेनी स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। ओके देखो मेरे पास मोबाइल यहाँ पर है, मैं सारे बच्चों को नाम देखता हूँ यूजुअली, जो माइक ऑन करते हैं ना तो उनका पॉपअप ऊपर होता है, सो आई गेट टू नो हु स्पीकिंग। बट सो आई एम वेरी हैप्पी मेनी स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग। पासे कंपोज, व्हाट इज रूल फॉर पासे कंपोज स्टूडेंट्स? Subject pronoun aller, our, आवर एत्र है uh, प्लस पीपी। ओके पीपी मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी स्टूडेंट्स। एक इंपेरेटिव मोड भी पढ़ा था हमने, वो प्रेजेंट टेंस जैसा ही होता है, उसमें खाली वर्ब होता है बस। द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ब, उसको इंपेरेटिव मोड बोलते हैं। ओके तो इतना आप लोग को लर्न करना है एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। हर लेक्चर के पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे जब मीनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वा क्या मौजे तू लगा तो व्हाट यू एट द होल केक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन देखना, हर एक के अंदर नाउन मैस्कुलिन है तो यहाँ पे हम मैस्कुलिन यूज करेंगे। नेक्स्ट वाले में स्टूडेंट्स प्लाज, प्लाज मतलब बीच होता है, नहीं सॉरी बीच होता है, बीच, गॉड नोस हाउ टू प्रोनाउंस दिस। तो TOUTES आएगा, फेमिनाइन प्लूरल लेता हूं। गेटिंग इट? तो स्टूडेंट्स ये जो इंग्लिश टू फ्रेंच जो यहाँ पे लिखिए दिया हुआ है, आप लोग को उसको लर्न कर देना है। नेक्स्ट आफ्टर दैट टू ए शेयर, टू ए शेयर। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नाउन नहीं है सेंटेंस के अंदर, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। ये EST एक वर्ब है और शेयर एक एडजेक्टिव है, तो कोई नाउन नहीं है बच्चे लोग, तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैस्कुलिन सिंगुलर। लाइफ में है ना मैस्कुलिन मेल हमेशा एकदम सेफ है, जीवन में कुछ नहीं समझे तो मैस्कुलिन सिंगुलर के पास चले जाओ, ठीक है। एंड लास्ट इज ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, अगेन इट्स अ प्रोवर्ब वेयर देयर इज नो नाउन। सो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पता तो उन्होंने मैस्कुलिन सिंगुलर यूज कर दिया। आफ्टर दैट उन्होंने लिखा है डिड यू फिनिश द एंटायर वर्क, तो उसने लिखा यस एवरीथिंग। तो यहाँ पे किसको देखा उसने? यहाँ पे मैस्कुलिन सिंगुलर था इसलिए उन्होंने TOUT डाला। नेक्स्ट इज पॉल रोट द होल सॉन्ग, द एंटायर द होल सॉन्ग। सॉन्ग की बात चल रही है स्टूडेंट, सॉन्ग फेमिनाइन है, सॉन्ग फेमिनाइन है तो ये लोग ने यहाँ पे TOUTE डाल दिया। आर यू गाइस गेटिंग दिस? मैस्कुलिन का तो मैस्कुलिन, फेमिनाइन तो फेमिनाइन। तो लुक एट द नाउन, जस्ट लुक एट द नाउन एंड फॉलो द नाउन, दैट्स इट। और अगर कहीं सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं होगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर हम मैस्कुलिन सिंगुलर डाल देंगे। चलो खाली इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज कंप्लीट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू। तो अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी इसमें से नहीं, कहीं बाहर से भी आ सकते हैं। सारे के सारे नाउन्स आपको पता होने चाहिए कौन मैस्कुलिन और फेमिनाइन है। फर्स्ट इज आई लाइक द सीजंस ऑफ द ईयर, आई लाइक ऑल द सीजंस ऑफ द ईयर। बताओ ये सीजन क्या है, मैस्कुलिन के फेमिनाइन है? Plural है sir. हाँ प्लूरल तो है बेटा, पर मैस्कुलिन प्लूरल के फेमिनाइन प्लूरल है, वो इंपॉर्टेंट है। या चलो फेमिनाइन प्लूरल है, हाँ फेमिनाइन प्लूरल है, फेमिनाइन प्लूरल है। कैसे सर? कैसे? ये कैसा क्वेश्चन है कैसे? मतलब वो लास्ट का ईयर का लिया ऐसा क्या? नहीं बेटा, सीजन, सीजंस, ऑल द Okay, सीजंस है ना। वो- मैं लड़का हूँ, आप मुझे पूछोगे सर आप कैसे लड़के हो गए, तो यार इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, तो ठीक जो है। लर्न करना पड़ेगा बच्चे लोग, है ना। चलो L.R. Roncontre, she met all her old professors at the university, या all her ancient professors at university। तो अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी नाउन कौन सा है? प्रोफेसर, प्रोफेसर मैस्कुलिन प्लूरल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? TOUS लिखेंगे, टू। she met। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को इंग्लिश आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में मैंने प्रेजेंट टेंस किया, सेकंड वाले में L.R. Roncontre कौन सा टेंस है? Past. यहाँ पासे कंपोज है, सेकंड वाले में पासे कंपोज था। थर्ड वन, टेल मी थर्ड वाले में कौन सा टेंस है? इना मौजे, अगेन इट इज पासे कंपोज, सब्जेक्ट प्रोनाउन avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मीनिंग क्या आएगा थर्ड वाले का बताओ? I ate dash cake. आई नहीं आएगा बच्चा, इल फॉर्म है। he, कि ate the entire cake, the whole cake, all the cake, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ओके तो आप इंग्लिश में कुछ भी लिखो, अगर आपको जब इंग्लिश टू फ्रेंच आ गया, फ्रेंच टू इंग्लिश आ गया तो आप लोग होल केक लिखो, एंटायर केक लिखो, जो लिखना लिखो बिंदास, उसके लिए कहीं पे आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले, ठीक है। अगेन मैस्कुलिन सिंगुलर, केक इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या आएगा? TOUT।
Fourth one, dash tourists walk a lot dash the day. चलो तो सबसे पहले टूरिस्ट है स्टूडेंट्स। देखो टूरिस्ट की स्पेलिंग ऐसी है, TOUS लिखो तो भी राइट मिलेगा, TOUTES लिखो तो भी राइट मिलेगा, बिकॉज उसकी स्पेलिंग में लास्ट में ई है। मैस्कुलिन फेमिनिन में सेम स्पेलिंग है उसकी। तो ऑल द टूरिस्ट वॉक अ लॉट। बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लास्ट वाला आंसर तुम लोग बताओ। चलो फेमिनिन है सर वो। TOUTE. वेरी गुड, TOUTE। So all the tourists walk a lot entire day. Last, tout la famille mange ensemble le dimanche. TOUTE. TOUTE. All the family eat together on Sunday. Family feminine. Yeah, it's a feminine noun. बेटा ला लिखा है ना आगे, देखो ला लिखा है, तो ला से समझ जाने का, ये तो इजी एकदम ही। ठीक है, Yes. ओके। चलो अब इसको मैं, तो बस स्टूडेंट्स इसमें देखो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं अपन को, अपन टेक्स्ट बुक में से ही प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर अस। और क्योंकि क्या करना है, हमको नाउन को जानना है। नाउन आपको बताना चाहिए कि मैस्कुलिन या फेमिनाइन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग विद ई फेमिनाइन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है। तो मैं यूजुअली आपको ये नहीं बोलूंगा कि बैठ के लर्न करने बैठो मैस्कुलिन फेमिनाइन, आप बस टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक जैसे जो वर्ड्स आएंगे ऐसे लर्न करते जाओ। एक टाइम तक आपको ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाएगी कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनाइन, पता चल जाएगा। ओके Sir, can you do one question from the worksheet of this, please? क्या वापस बोलो। From the worksheet, can you do one question of this, please? From the No, worksheet. Kiana, there is no such exercise that I have in the worksheet. Okay. ये कियाना से मैं एक्स्ट्रा फीस लेगा, ये बहुत डिमांडिंग है लड़की। आई गेस इसने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ बोला रहेगा। जस्ट किडिंग, ओके, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ। चलो, बट दिस इज ग्रेट व्हेन स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव, ज्यादा मजा आती है। मैंने लास्ट ईयर भी क्रैश कोर्स रन किया था, देयर वर हार्डली 7-8 पीपल। इट वेंट अ लिटिल बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल, but I feel with you guys it's going amazing, okay? Because मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई आंसर करता है फटाफट, तो थोड़ा अच्छा लगता है। I feel being connected with you guys. चलो स्टूडेंट्स, अभी देखो हम लोग ये वाला टॉपिक फिलहाल नहीं कर रहे, पेज नंबर 37। पूछो क्यों नहीं कर रहे? क्या हमने ये टॉपिक ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर लिया? We already done it in the pronoun. Yeah. We already done it. चलो ठीक है, हम लोग को थोड़े बहुत ग्रामर टॉपिक्स आगे रन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड वर्ब दिया हुआ है हमें पेज नंबर 38 के ऊपर। सो वर्ब्स मैंने बताया था स्टूडेंट्स पेज नंबर 38। देखो मैंने क्या किया था व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, मैंने तो एक पूरी लिस्ट ही बना दी थी प्रेजेंट टेंस के अंदर। एक तो हमको पेज नंबर 15 पे ऑलरेडी दिया हुआ है, पेज 15 पे अपन 14 पे दिया हुआ है, 15 पे वर्ब्स दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स हर एक चैप्टर के अंदर वर्ब आते हैं। देखो ये रीड वर्ब है, मुझे याद है कोई चैप्टर में सावुआर वर्ब है, कोनेत्र वर्ब है, किसी में तो वो भी वर्ब है, विव्र वर्ब भी दिया हुआ है हमें कोई तो पर्टिकुलर चैप्टर में, कॉन्वीर वर्ब दिया हुआ है, कौन सा बोला, फालुआर है, एंड डवुआर वर्ब है। आई गेस ये सब चैप्टर्स के अंदर स्प्लिट हुए हैं, बट देन इट ऑल बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट इज प्रेजेंट टेंस इररेगुलर वर्ब्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपको अभी से एक नोट्स बनाना शुरू कर देना है। एक बुक लो, भले 100 पेजेस की लो, कितनी भी लो। जैसे प्रेजेंट टेंस आया तो सारे प्रेजेंट टेंस के रेगुलर फॉर्म्स लिख दो। आपको लग रहा है ना, एक पार्ट खाली ऐसे बना दो एक्सप्रेशन से, आपको लगे कि समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप पढ़ रहे हो, सबको आपको लगा अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट है पर ये मेरे को याद नहीं रहेगा, तो आप क्या करो वो एक पेज पे लिख लो, ताकि जस्ट मेक, और या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो। वो बोलते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको अपने हिसाब से आप नोट्स बनाओ। Nobody can give you good notes. You yourself know what are your strengths and what are your weaknesses. And I feel भले जैसे मैथ्स के बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ, we are running a commerce classes, तो मेरे पास काफी सारे, we have almost 100 स्टूडेंट्स, मतलब जो 12th में है, जिनको मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो उन बच्चों को, जैसे वो मैथ्स के एसपी के बच्चे, तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स के लिए फॉर्मुला बुक बना दो। वो फॉर्मुला बुक इतना हेल्प करता है, मैं 12th में था ना, तो मुझे वो फॉर्मुला बुक, आई हैड अ फॉर्मुला बुक, तो वो फॉर्मुला बुक बहुत हेल्प होती है, लास्ट मिनट में काम आ जाता है। So whenever it is, जैसा तुम्हें कुछ लगे तुम लोग उसको ऐसा कुछ कर दो, है ना? Fine. So again students, read verb आप लोग लर्न कर लो, je, ri, tu, ri, il, ri, el, ri, nu, rion, vous, riez, il, ri, el, ri। और ये जितने भी एक्सरसाइज है ना टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऑप्शन है कि हम ये सब टेंसेस वाले पार्ट तो वर्कशीट में से एक्स्ट्रा करने वाले हैं, बट जहां टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, मतलब योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टेक्स्ट बुक।
मतलब मैंने जब क्रैश कोर्स शुरू भी किया था ना स्टूडेंट्स, मेरा प्लान था कि हम रिवीजन करेंगे. रिवीजन, द नेम ऑफ द क्रैश कोर्स वाज द एंटायर फ्रेंच रिवीजन. सो आई हैड अज्यूम्ड दैट यू गाइस आर ऑलरेडी सॉल्व. आप लोग ने ऑलरेडी ये पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लिया है. अब जो बच्चे टेक्स्ट बुक नहीं सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ एक्स्ट्रा वर्कशीट कर रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं. आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही टेक्स्ट बुक होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही टेक्स्ट बुक में से है. आप फिर मेरे साथ बैठो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो. आपको कोई ग्रामर टॉपिक नहीं आ रहा, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो एक्सप्लेनेशन सुन लो, बट आपका मेन फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए टेक्स्ट बुक. ओके. अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो एकदम प्रॉपर प्रिपेयर्ड है एकदम, ऐसे भी मेरे पास बच्चे हैं जो प्रिपेयर्ड थे, मतलब उनको तो मैं, मोस्टली होगा. तो बेटा अगर आपका मोस्टली हो चुका है समझो फॉर एग्जांपल, तो बच्चे लोग को लगता है कि सर अभी क्या प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं समझ रहा है. तो मैंने तो एक दो बच्चों को ये भी बोला था कि आप नया टेक्स्ट बुक खरीद लो. 11th का एक टेक्स्ट बुक खरीदोगे, 12th का एक टेक्स्ट बुक खरीदोगे, कितना 200 रुपया लगेगा बस. और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस एक बार वापस सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, है ना. इफ यू हैव एनी ऑफ योर टीचर्स अराउंड यू, फ्रेंच टीचर्स, तो आप उनको बोल सकते हो कि ऊपर ऊपर से एक बार सर ऊपर ऊपर से चेक करके दे दो फटाफट, है ना. अगर मैं एक टीचर हूं, मेरे को चेक कर दो, इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मी. I had French from my 6th standard ना, तो ये हो चुका है बेसिक सब. तो ओके ओके आर्यन, वेरी स्मार्ट. वेयर डू यू स्टे आर्यन? पुणे. ओके, ग्रेट, फाइन फाइन. तो हाँ, तो बस मतलब ऐसा ही है कि अगर आप वो स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां आपको आ रहा है बस अब, लेकिन बट यू स्टिल वांट टू जस्ट रिवाइज इट एंड यू वांट टू शार्पन योर स्किल, तो आप उसको वापस एक बार पूरा टेक्स्ट बुक ही सॉल्व कर लो. बस टेक्स्ट बुक के अंदर घुस जाओ पूरा का पूरा. ओके चलो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आई वांट टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज द टू टॉपिक्स दैट आई वांट टू डू टुडे इज कंपैरेटिव डिग्री करना है हमें, कंपैरेटिव सुपरलेटिव करना है, और एक आई गेस एक और एडवर्ब वाला पार्ट करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. I am going to go somewhere on second chapter. हम फिलहाल आज पास से कंपोज नहीं कर रहे. मेरा विचार है एक दिन मैं फिर से सारे टेंसेस करवाऊंगा, थोड़ा सा बाद में, पहले बाकी सब टॉपिक्स को भी टच कर लेते हैं. अच्छा याद दिलाना स्टूडेंट्स, एक दिन खाली सिविलाइजेशन करेंगे बैठ के, सारे चैप्टर्स के सिविलाइजेशन करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे और उसको टिक मार्क करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है. रिमाइंड मी, समडे वी विल डू दैट. Okay, sir. सारे ग्रामर टॉपिक्स खत्म होने के बाद करेंगे, लेकिन हाँ 4 चैप्टर के ग्रामर टॉपिक हो जाएंगे ना, मुझे लगता है I 1-2 will लेक्चर remind लगेगा. you. I will remind you. या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे चारों के चारों सिविलाइजेशन पार्ट इतने इंपॉर्टेंट है ना, क्या बताओ, जाया नहीं कर सकता मैं लफ्जों में. चलो ठीक है. Okay students, so moving forward to the next part that we have right now is page number 54 and that is adverb. Okay, adverb के कुछ rules है, कोई बता सकता है what are the rules of adverbs? Okay चलो अभी स्क्रीन के सामने वो rules आ गए. अच्छा देखो स्टूडेंट्स, एडवर्ब का कैसा है ना, आप नाउन से एडवर्ब नहीं बना सकते, आपको कंपलसरी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है. इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में स्मार्ट का स्मार्टली होता है, मतलब स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव, उसको आप स्मार्टली कर सकते हो भाई. मतलब कुछ भी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, बट नॉर्मली स्टूडेंट्स एडवर्ब्स कैसे बनेंगे, एडजेक्टिव्स के थ्रू ही एडवर्ब्स बनेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो what are the adjectives. Masculine adjective दिया होगा स्टूडेंट्स, तो masculine adjective को feminine adjective में चेंज करो. So rule number 1, change masculine adjective into feminine adjective and that MENT. आपको चाहिए तो आप ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना. तो कभी भी masculine adjective दिया होगा स्टूडेंट, उसको feminine में कन्वर्ट करो, और feminine में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, उसके ऊपर MENT लगा दो. अच्छा इंग्लिश में हम कौन सा लेटर लगाते हैं एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश में? ly. एग्जैक्टली, हम इंग्लिश में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ly लगाते हैं. तो फ्रेंच में हम क्या लगाएंगे, MENT. दैट डजंट मीन दैट एवरी वर्ड एंडिंग विद MENT इज एडवर्ब. एक बार पता है क्या कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया था, एक changement वर्ड दिया था, ल changement, और उसी के अंदर एक और समझो कोई एडवर्ब भी दिया था सच्ची वाला, जैसे कोई constamment दे दिया. ये ना किसकी बात है, कॉम्प्रिहेंशन की बात है, बोर्ड एग्जाम की बात है. ठीक है, 2 वर्ड थे ऐसे. अब क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर था, पिक आउट एन एडवर्ब फ्रॉम द टेक्स्ट. पूरा कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी एक एडवर्ब पिक आउट करो, इट कम्स फॉर 1 मार्क. अब काफी बच्चे लोग ने changement वर्ड डाल दिया, changement को सोच के कि भाई ये एडवर्ब है, बस MENT दिखाने लग पड़ गए एकदम ही. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. सो आपको देखना है, कभी भी देखो कोई नाउन होता है उसके पहले हमेशा आर्टिकल होता है, बट ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ नहीं होता है, उनके पीछे कोई आर्टिकल नहीं होता है. ओके, सो यू हैव टू प्ले लिटिल स्मार्ट एंड अंडरस्टैंड. और आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लो ना, चेंजिंगली तो ऐसा कोई वर्ड भी नहीं होता, चेंजिंगली और समथिंग. कॉन्स्टेंटली, यस इट्स अ वर्ड एंड इट साउंड्स लाइक एन एडवर्ब. सो यू हैव टू बी स्मार्ट, इट विल कम इन योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और एल्स इन योर इंग्लिश टू फ्रेंच पार्ट, या मुझे लगता है अलग से भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. रूल नंबर 2 से स्टूडेंट्स अभी है
If the adjective ends with a vowel, if the already adjective ends with a vowel, then you have to simply add MENT. Don't make any changes and put MENT. And rule number 3, अगर कोई भी adjective के लास्ट में ENT होगा तो it will change to EMMENT, या अगर किसी के लास्ट में ANT होगा तो it will change to AMMENT. ये सिंपल है. ENT EMMENT, ANT AMMENT. Fine. There are thousands of adverb students. तो हमें थोड़ा सारे के सारे पढ़ने हैं. हम बस उतना ही पढ़ के जाएंगे जितना हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. बहुत ज्यादा एडजेक्टिव, जितने जितने एडजेक्टिव्स होते हैं उतने एडवर्ब्स भी होते हैं. और कितने एडवर्ब है? काफी सारे एडवर्ब्स है. सॉरी, काफी सारे एडजेक्टिव्स है और उसके काफी सारे एडवर्ब्स भी होंगे. सो स्टूडेंट्स, वी विल अगेन restrict ourselves to only what is given in the textbook. उतने में खुश रहेंगे हम लोग. फाइन. सो लेट्स राइट. अगर आप लोग को चाहिए वहां पे मीनिंग लिखते जाओ. फर्स्ट इज क्यूरियर. तो देखो ये रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है. पहले मैस्कुलिन टू फेमिनाइन और फेमिनाइन से MENT. क्यूरियस मॉ. क्यूरियस मॉ का मतलब क्या होगा बच्चे लोग बताओ? Curious. Curiously. Parfait. Again, parfait का masculine to feminine, feminine to MENT. Perfectly. Certain. Certain का certain and certain. Again, masculine to feminine and then MENT. Certainement. Certainly. Certainly मतलब एकदम surely. Certainly. Long. अच्छा बच्चे लोग अभी ये लॉन्ग को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. उसको लर्न कर लो. LENT MENT. कोई बच्चे लोग इसके अंदर रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं. ENT को EMMENT कर देते हैं और ये गलती होनी जायज भी है बिकॉज वो वर्ड ही ऐसा है. तो आप लोग लर्न कर लो. स्पेसिफिकली पेज 54 पे दिया हुआ है कि भाई LENT का LEMMENT, ये पहले मैस्कुलिन टू फेमिनाइन. ये रूल नंबर 1 फॉलो करेगा, रूल नंबर 3 फॉलो नहीं करेगा. पहले मैस्कुलिन टू फेमिनाइन जाएगा और फेमिनाइन टू MENT आएगा. तो आप लर्न कर लो. इसमें मिस्टेक नहीं करके आना. Okay, so what do you got in English? Slowly, lentement, slowly. Okay, slowly explain. Okay, chalo, great. Just a second. Fine. Moving forward, next students. क्या यहाँ पे तिमिद दिया हुआ है तो तिमिद का क्या आएगा? तिमिद आ जाएगा. शाइली. त्रिस का त्रिस्म आएगा. सैडली. अब स्टूडेंट्स ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 2. व्हेन द एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स विद अ वोवेल देन यू हैव टू सिंपली ऐड MENT. तिमिद का तिमिद मो. मैं यहाँ पे मीनिंग लिखता तो एक काम करता हूँ ताकि याद रहेगा. शाइली. शाइनी हो जानी है. शाइली. सैडली. ग्रामो इज समथिंग सीरियसली बोल सकते. सीरियसली. Patimo is patiently. Prud'homme is carefully. Prud'homme. ENT EMMENT होगा. Couramment is constantly. Sorry मैंने कट कर लिया. Constantly. Courant मतलब स्टूडेंट्स फ्लुएंटली होता है. Couramment, fluently. Je parle le français couramment. इसका क्या मीनिंग होगा? Je parle le français couramment. I speak French fluently. I speak French fluently. Elegamment is elegantly. Perfect. अच्छा तो स्टूडेंट्स ये जो दो था वो उन्होंने क्या किया है? रूल नंबर 3 फॉलो किया. ENT चेंजेस टू EMMENT और यहाँ पे क्या था? ANT changes to AMMENT. Am I going fast, slow और सब बराबर एकदम बच्चे लोग? It's okay. बराबर है sir. एकदम बराबर है. चलो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स. अगेन दिस इज रूल नंबर 2. अब बच्चे लोग हम लोग ये वाला जो पार्ट कर रहे हैं अगेन दिस इज रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में क्या बोला था? If the adjective ends with a vowel simply add MENT. पोली का पोलीमो. What's the meaning of पोलीमो? Polite. या politely. And फ्रेमो is really होता है. really, truly, really कुछ भी बोल सकते हैं. एंड लास्ट वंस बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए. आपको ये एक्सेप्शंस को अच्छे से लर्न कर देना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉ का क्या हो जाएगा? बिया. बिया मतलब क्या होता है? गुडली बोल सकते क्या? नहीं, नाइसली. माल इज बैडली. ओके, माल अनलाइक हिंदी इट्स अ बैड वर्ड स्टूडेंट्स. मेरी कमर माल है. मेरी कमर माल है मतलब कि मेरी कमर में दर्द है. नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग. एंड जेंटली इज काइंडली या जेंटली होता है. काइंडली या जेंटली बोल सकते हैं. जेंटली, काइंडली.
सो बस स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेंगे, इतने ही एडवर्ब्स पढ़ लो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि बाहर से और कोई एडवर्ब्स, बिकॉज बाहर से अगर कुछ नहीं आता ऐसे बहुत सारे यार, तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी बच्चों के लिए समझना या जानना कि क्या आ सकता है। सो हम अज्यूम यही कर सकते हैं कि जो भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया होगा उतना ही पूछा जाएगा, उतना काफी हमारे लिए फिलहाल के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 साथ साथ में करेंगे। फर्स्ट डू। अच्छा देखो अभी डू का क्या करेंगे, पहले फेमिनाइन कर देंगे। डूज सॉफ्ट होता है, DOUX, जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसका मतलब सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। डूज हो जाएगा उसका फेमिनाइन और फिर MENT। डूज मोर सॉफ्टली, आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख लो सॉफ्टली। पोली का स्टूडेंट्स पोली तो पोलीमोर। रूल नंबर 2 ऑलरेडी एंड्स विद वॉवल तो MENT डालेंगे। थर्ड वन, रूल नंबर 1 मैस्कुलिन का फेमिनाइन करेंगे, MENT डालेंगे। हर रज़्मो। लेजर स्टूडेंट्स ER है ना, ER। टेल मी ER का फेमिनाइन में क्या होता है लास्ट में? ER चेंजेस टू Egraph RE. परफेक्ट बेटा, ईग्राम आ रही है फिर MENT डाल देंगे। तो मैस्कुलिन टू फेमिनाइन करेंगे, ER को क्या कर देंगे, ईग्राम आ रही करेंगे। What does it mean? Oh, what does that mean? Lightly, हल्का, lightly. Okay, sir. व्रेका व्रेमो, really truly. रार का रारमो, rarely. Simplement, simply. ऑलरेडी लास्ट में E है तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे, बस MENT लगा देंगे। रेगुलियर, ओके लास्ट में वापस ER है तो ER को ईग्रावारी फिर MENT। रेगुलियरमो, ER का ईग्रावारी फिर MENT लगा देंगे। बॉ का स्टूडेंट्स क्या देगा, बिया। मोवे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माल। कॉन्स्टामो, AND changes to AMMENT। AND changes to AMMENT। And finally पासियों का पातिमो आएगा, ENT changes to EMMENT। patiently, 12th one is patiently। Okay, so I'm going to wait for 30 seconds for you guys. Sir, in number 11, there is no N. कॉन्स्टामो क्या बेटा, नंबर There's no 11? N. You forgot to put the N. N is not there. नंबर 11 Huh. कॉन्स्टामो बराबर तो लिखिए बेटा स्पेलिंग। There's no N. You're not supposed to put an N. Which N बेटा? ANT changes to AMMENT। Okay. So you remove the N. We don't remove anything बेटा, ANT changes to AMMENT। जो Okay. ANT होगा लास्ट में वो AMMENT हो जाएगा बस। Okay. हाँ तो बाकी आपको जो लगे वो सब रिमूव, या ठीक है। Just one second. यार shit. Done. Done, one second। यार ये लैपटॉप 1 मिनट सुनिए, थोड़ा लैपटॉप कुछ तो हैंग कर रहा है सब। Damn. देखो स्टूडेंट्स हमारे सामने काफी सारे एडवर्ब्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अब देखो ना कितनी बार ये अभी के हमारे पास नहीं दिया हुआ है, पहले की बुक में कैसा था, हमें नाउन देते थे और ऑनेस्टली नाउन से हमें क्या करना होता है, एडजेक्टिव फाइंड करना होता था। स्टूडेंट्स नाउन से एडजेक्टिव बनाने का हमारे पास कोई रूल है क्या? हमारे पास नाउन से एडजेक्टिव बनाने का कोई भी रूल नहीं है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है आवेग जुआ। आवेग जुआ लिखा मतलब स्टूडेंट्स तो क्या होता है, जॉय होता है, जॉय। आवेग जुआ मतलब इसका एडजेक्टिव जॉय होता है। जॉय का फेमिनाइन क्या होगा स्टूडेंट्स, जॉयस। और जॉयस का एडवर्ब क्या बनेगा, MENT लगा दो। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी ऐसा कुछ देंगे हम लोग को कि नाउन से वैसा कुछ करने का। सेकंड वन प्रूडॉन दिया हुआ, तो प्रूडॉन का चलो अभी हमने जस्ट देख लिया, प्रूडॉन EMMENT। थर्ड वन, ये किसी का तो माइक ऑन है।
या थर्ड वन पासियों, चलो ये तो हमने अभी किया, EMMENT। फोर्थ डिफेरॉन लिखा है, डिफेरोमो आएगा, ये क्या लास्ट में एक से ना, DIFFERENT या EMMENT हो जाएगा, डिफेरोमो। फिफ्थ वन लॉन्थ है, तो लॉन्थ तो हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रूल नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। ई के बाद MENT लगाएंगे। रेसो अगेंस्ट EMMENT आएगा, रेसोमो। EMMENT चेंजेस टू EMMENT रिसेंटली। किसी का मीनिंग नहीं पता तो पूछ सकते हो बच्चे लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। 6 के बाद 7 कॉन्स्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे 7 का, CONSTAMMENT कॉन्स्टामो। 8 दिया हुआ है कूरा, तो ये सब हमने अभी जस्ट किया, कूरामो। 9 के लिए स्टूडेंट्स कौन सा वर्ड है, आवेग तिमिदिते। अभी देखो फिर से स्टूडेंट्स, तिमिदिते क्या नाउन दिया हुआ है, तो तिमिद का नाउन क्या होता है, तिमिदिते का नाउन सॉरी एडजेक्टिव ये होता है तिमिद। फिर ये तिमिद का फेमिनाइन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, TIMIDE। फिर उसमें क्या करेंगे, TIMIDEMENT। आप समझ रहे हो। पहले तो हमें एडजेक्टिव फाइंड करना है, एडजेक्टिव को फेमिनाइन करना है, फेमिनाइन से एडवर्ब डालना है। ओके, बट डायरेक्टली नाउन से एडवर्ब नहीं आ सकता। अच्छा, पेशेंस, विद पेशेंस, तो पेशेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, पेशेंट, ये उसका एडजेक्टिव है बराबर, ये इसका एडजेक्टिव। और ENT चेंजेस टू, बताओ ENT का क्या होता है, PATIEMMENT. ENT will change to EMMENT। नेक्स्ट इज जॉन्टिलेस, ये ना वो जॉन्टिलेस वर्ड है, तो उसका जॉन्टिल होता है, जॉन्टिल। और जॉन्टिल इज एन एक्सेप्शन, जॉन्टिमो, जॉन्टिमो। 12th वन सेक SCC। चलो 12th वन नहीं करते स्टूडेंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। SCC ना वो सेशमो होगा, लेट्स नॉट डू दैट, ओके, नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस। एवी क्या लिखा, एविडों, तो एविडों में स्टूडेंट्स EMMENT विल चेंज टू EMMENT हो जाएगा। एविडमो मतलब एविडेंटली होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, एविडेंटली। अगेन 14th वन स्टूडेंट्स, देखो ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, मेरवेलियर है ना। उन्होंने अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव दे दिया इसके लास्ट में EUX है, तो वैसे वो लोग कोई और भी एडजेक्टिव दे सकते हैं। तो EUX का क्या होगा, EUSE करेंगे, फिर MENT, मेरवेलियसमो। मीनिंग क्या होगा मेरवेलियसमो का, मार्वेलसली। वेरी गुड बेटा, मार्वेलसली। हर तो HEUREUSEMENT, हरसमो। 16 मालहर, तो मालहरसमो आएगा। ये मालहर क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है, तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा, मालहर, HEUREUX, मालहर। EUX विल चेंज टू EUSEMENT आएगा, मालहरसमो। मालहरसमो मतलब अनलकी, अनलकीली होता है। What does number 15 mean? हरसमो इज हैप्पीली या लकीली, हैप्पीली, Okay. लकीली। मालहरसमो अनहैप्पीली या अनलकीली। And number 14? बेटा आप गेस करो, नंबर 14 बहुत इजी है। Means चलो somebody help her with number 14। मार्वेलसली। Yeah, very good beta, marvelously। 17 again important, 17 is important। ER changes to E-graph E RE. graph RE. या E ग्राम आ रही, फिर MENT, ठीक है। देन लेजर में भी स्टूडेंट्स वैसा ही है, वापस लास्ट में LE ग्राम RE MENT है। आई गेस ये तो अभी हमने जस्ट ही किया है लेजर में। 19 प्रीमियर है स्टूडेंट्स, प्रीमियर में वापस, प्रीमियर में भी सेम है स्टूडेंट्स, PREMI, E ग्राम RE फिर MENT। प्रीमियर में मतलब फर्स्टली, प्रीमियर मतलब फर्स्ट होता है, फर्स्टली। ओके चलो, इतने बाहर के एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स की प्रैक्टिस काफी है स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5-10 सेकंड्स नहीं, एटलीस्ट 1 मिनट, यू गाइस कैन कॉपी दिस डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आई होप आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा। एंड हमने एडवर्ब वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है विद सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। लेट्स मूव बैक टू द टेक्स्ट बुक नाउ, एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज कंपैरेटिव सुपरलेटिव। चलो कंपैरेटिव सुपरलेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड समथिंग फर्स्ट। कंपैरेटिव सुपरलेटिव का टॉपिक, इट विल टेक मी जस्ट 2 seconds mostly। Comparative, oh यार come on, okay fine। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग को रूल याद करना है, कंपैरेटिव का रूल क्या होता है,
there has to be plu plus adjective plus ka, फिर mua plus adjective plus ka, oc plus adjective plus ka. कोई भी सेंटेंस के अंदर plu plus adjective plus आएगा, mua plus adjective plus ka आएगा या oc plus adjective plus ka आएगा, that means it's a comparative degree. उसका मीनिंग क्या है? more than, less than, as. फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, हेल्प मी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन. मिथिल ए प्लू ग्रो का आर्यन, मीनिंग बताओ. Mithil is taller than Aryan. वेरी गुड. मिथिल इज टॉलर देन आर्यन. यहाँ पे प्लू दिया हुआ तो मोर की बात चल रही है. ओके, ज्यादा मतलब मिथिल ज्यादा बड़ा है आर्यन से. सेकंड, दिव्या ए मोआ पारसियस का विभूति, मीनिंग पारसियस का क्या मीनिंग है? बच्चों लोग 11th स्टैंडर्ड में पारसिय वर्ड आता है, बताओ क्या होता है मीनिंग पारसियस का? Lazy. एग्जैक्टली. दिव्या is दिव्या less. दिव्या इज लेस लेजी देन विभूति. ओके, एंड थर्ड वन, les garçons sont aussi intelligents que les filles. The Meaning boys it- are intelligent as the girls. Yes. Yeah, so the boys are as intelligent as the girls. Okay बच्चे लोग, तो बस सेंटेंसेस के अंदर प्लू प्लस एच प्लस का आना चाहिए, मुआ प्लस एच प्लस का आना चाहिए, ओसी प्लस एच प्लस का आना चाहिए. देखो आपके यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हमें टेक्स्ट बुक के अंदर. यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक. Still copying. I'm still copying. या आई कम बैक टू दैट स्लाइड. ओके, 1 मिनट. Okay. तो स्टूडेंट्स देखो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मार्क ए प्लू ग्रॉ का सॉ फ्रेयर. तो प्लू आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, क भी आ गया. मार्क इज टॉलर देन हिज ब्रदर. रीटा ए मुआ गुरमॉन. गुरमॉन मतलब ग्रीडी होता है, जो खाते पीते रहते हैं. तो रीटा इज लेस ग्रीडी देन पेट्रिसिया. एंड विवेक इज एज इंटेलिजेंट एज महेश. तो यहाँ पे ओसी प्लस एच प्लस क. तो उन्होंने भी हमको 3 सेंटेंसेस दिए हैं. उस 3 में क्या है स्टूडेंट्स? प्लू प्लस एच प्लस क है, मुआ प्लस एच प्लस क है, या ओसी प्लस एच प्लस क है. ओके, मोर देन, लेस देन, एज. तो आप लोग को लर्न करना है. क्या लर्न करना है? जैसे अगर हम लोग ने स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक कौन सा किया था? अभी आज ही एडवर्ब किया था. एडवर्ब का रूल नंबर 1, चेंज मैस्कुलिन एडजेक्टिव इनटू फेमिनिन एडजेक्टिव एंड दैट MENT. रूल नंबर 2, if the adjective ends with vowel then simply add MENT. Rule number 3, if the adjective ends with ENT change to EMMENT, और ANT होगा तो AMMENT. तो ये जो भी रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स आपको लर्न होना चाहिए. सिमिलरली आज हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हैं. अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या है सर? अच्छा, कंपैरेटिव रूल है प्लू प्लस एच प्लस क, मुआ प्लस एच प्लस क, ओसी प्लस एच प्लस क, मोर देन, लेस देन, एज. कळलं तुम्हाला सगळ्यांना? हो हो. सर. Oh, sir. ओ सर. मेरे को थोड़ा ही मराठी आता है. आई वाज वेरी बैड एट मराठी इन माय स्कूल डेज. मुझे रिसेंटली किसी ने यूट्यूब पे मराठी में कमेंट किया था, तो आई मैसेज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, शी इज महाराष्ट्र. आई टोल्ड हर आई वांट टू रिप्लाई हिम इन मराठी. सो उसने फिर मेरे को रिप्लाई दिया, फिर मैंने उसको रिप्लाई किया. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. क्या है नेक्स्ट? सुपरलेटिव. अच्छा, अभी सुपरलेटिव करना है स्टूडेंट्स हमें. सुपरलेटिव का भी ऑब्वियसली कुछ रूल है. जस्ट 1 सेकंड. मैसेज डोंट कॉल एम लेक्चर, डोंट एम इन लेक्चर. ओके, या सो सुपरलेटिव का स्टूडेंट्स रूल क्या है? अभी आप लोगों को एकदम इजी है. डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू या मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपिव आर्टिकल. ओके, 4 चीज होनी चाहिए. कितनी चीज होनी चाहिए टोटल? 4 चीज होनी चाहिए. सबसे पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, फिर या तो प्लू या तो मुआ आएगा. देखो, प्लू का मतलब मोस्ट होता है या मुआ मतलब लिस्ट होता है, सबसे ज्यादा सबसे कम. ओके, नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव एंड नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपिव आर्टिकल. पार्टिसिपिव एंड नेक्स्ट वी हैव पार्टिसिपिव आर्टिकल. ओके, सो डेफिनेट आर्टिकल कुछ बोलना है स्टूडेंट्स? ये 4 चीज आपको लर्न करनी है. Sir, can you explain this again? या बेटा मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू. चलो, सपोजिंग इफ आई वांट टू से दैट दिस वाइन इज द मोस्ट, नहीं या ये तो हो जाएगा मोस्ट, नहीं, लेट मी जस्ट थिंक 1 सेकंड. Eiffel Tower is the most फेमस कर चलो ऑफ इन द वर्ल्ड. ओके, आईफिल टावर इज द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड. तो ला टूर इफेल ए ल प्लू. देखो अब मुझे यहाँ से शुरू करना है. मुझे यहाँ से क्या शुरू करना है स्टूडेंट्स? ल आ गया, मतलब सबसे पहले क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल आ गया. मेरा प्लू आ गया. प्लू आ गया स्टूडेंट्स, मतलब ये क्या हो गया? मोस्ट हो गया.
अब एडजेक्टिव, टेल मी कौन सा एडजेक्टिव यूज करूं यहाँ पर? Celebra. फेमस के लिए कौन सा वर्ड है? Celebra. एग्जैक्टली, सेलेब्रो वर्ड है, CELEBRE, सेलेब्रो. सो आईफिल टावर इज द मोस्ट, अच्छा यहाँ पे आईफिल टावर फेमिनाइन है बच्चे लोग, तो यहाँ पे ला लिखेंगे, सेलेब्रो. और आगे पार्टिसिपेट आर्टिकल आना चाहिए, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड. तो वर्ल्ड मैस्कुलिन नाउन है स्टूडेंट्स, तो अगर वर्ल्ड मैस्कुलिन है तो यहाँ पे क्या आएगा? DU आएगा, DU. सो ला टूर इफेल एला प्लू सेलेब्रो. अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो सेलेब्रो है ना, यहाँ पे ये सब वर्ड आने वाले, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, इट विल टेक मी सम टाइम. ई अक्यूट, ई ग्राफ वगैरह इंसर्ट करने वाला हूँ. ओके, ई अक्यूट, वेरी है, UVI ई अक्यूट. ये सिंबल्स थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगाते हैं, बट आई गेस हो जाएगा. ओके, ये क्यूट यहाँ पे आएगा सेलेब्रम में, और फिर एक ई ग्राफ भी आएगा, यहाँ पे ई ग्राफ आएगा. ओके डन. चलो, टेल मी स्टूडेंट्स, टेल मी समथिंग इन इंग्लिश सो दैट आई कैन ट्रांसलेट टू फ्रेंच. अच्छा मैं बोल रहा, दिस रेस्टोरेंट इज द मोस्ट, नहीं फेमस वर्ड हो गया यार अभी. दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस रेस्टोरेंट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द लोकेलिटी, है ना? दिस रेस्टोरेंट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द लोकेलिटी करते हैं. फाइन. सर रेस्टोरेंट ए, तो इज आगे स्टूडेंट्स अभी देखो हम लोग को 4 चीज डालनी है, डेफिनेट आर्टिकल, प्लू या मुआ, प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपिव आर्टिकल, ठीक है? तो लो आएगा, फिर प्लू लिख देंगे, फिर एक्सपेंसिव के लिए कौन सा वर्ड है? टेल मी स्टूडेंट्स, एक्सपेंसिव. Share. वेरी गुड, शेयर आ जाएगा. और ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी स्टूडेंट्स क्या मैस्कुलिन नाउन है, तो द्यू कार्तिक आएगा, द्यू कार्तिक. ग्रेट. चलो, इफ यू गाइस वांट मी टू गिव एनी मोर एग्जांपल्स देन यू हैव टू टेल. चलो कोई लीस्ट का लेते हैं. लीस्ट के लिए कोई, हमको टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया था ना कोई, तो एक पता नहीं, चलो ठीक है, लीस्ट के लिए स्टूडेंट्स बोल सकते हो. आई टेक सम, Intelligent in the class. हम आर्यन लिख दें, आर्यन इज द लीस्ट टॉकेटिव इन द क्लास. चलो, तो आर्यन ए ल मुआ, मुआ बवार्ड, बवार्ड स्टूडेंट्स कौन सा है? एडजेक्टिव है, बवार्ड मतलब टॉकेटिव. ओके, तो ल आ गया, डेफिनेट आर्टिकल आना कंपलसरी है, मुआ आ गया, बवार्ड आ गया. इन द क्लास ना, क्लास, क्लास जब फेमिनाइन नाउन तो द आएगा, द ला क्लास. आर्यन ए ल मुआ बवार्ड द ला क्लास, मतलब वो एक लड़का जो एकदम कम टॉकेटिव इन द क्लास. ओके, ठीक है. अगर किसी को कोई और, अच्छा अभी हम टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स देख रहे थे एक बार के लिए, तो आपको 4 चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स. 4 चीज क्या होनी चाहिए? डेफिनेट आर्टिकल, प्लूमुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपिव आर्टिकल, ये 4 चीज आनी चाहिए. देखते हैं उन्होंने कौन सा एग्जांपल लिया है. फर्स्ट, कार्ल ए ला प्लू शॉन्टिल दसा क्लास, क्लास इज द नाइसेस्ट बॉय इन द क्लास. तो देखो सबसे इधर भी डेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ है, यस. फिर सर प्लू दिया हुआ है, ओके. फिर सर एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, ओके. और फिर सर पार्टिसिपिव आर्टिकल दिया, मतलब ये 4 चीज तो आएगी ही आएगी, कंफर्म है, वो भी एकदम सेम ऑर्डर में. ओके, चलो. आफ्टर दैट नेक्स्ट, लिया एल मुआ ग्राउंड द ला फैमिली, तो लिया सबसे छोटी है, शॉर्टेज, लीस्ट टॉल इन द फैमिली, है ना, सबसे छोटी है. तो वापस स्टूडेंट्स लिया लड़की है, तो यहाँ पे ला डाल दिया, मुआ आ गया, ग्राउंड आ गया, द आ गया, दला, है ना? मतलब 4 चीज तो आनी ही आनी है. स्वाहा सगड़ा कर लो. चलो अभी बहुत सेम हो गया. ओके फाइन. और स्टूडेंट्स अभी देखो एक लास्ट ये आ जाएगा, इंग्लिश में होता है ना गुड, गुड, गुडेस्ट, ऐसा होता है क्या बच्चे लोग इंग्लिश में? No, No. sir. Of course we never say that. Okay, if I say Hannah is the goodest girl in the class, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या बच्चे लोग? Of course we can't say that. Okay, मैं बोलूंगा let me just take a name, Indresh is the baddest boy, तो हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स गुड का क्या होगा? गुड, बेटर, बेस्ट, Not the best. बैड, वर्स, वर्स्ट. Yes. ओके, Sir, can you Chalo, please show that page where exceptions are written? Can you take it down, please? हाँ बस, 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 बस. ओके. Thank you. तो बच्चे लोग क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे क्या लिखा है? बॉ मैयर ल मैयर. आपको क्या याद रखना है? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे याद रखते हो ना? सिमिलरली अब क्या याद रखेंगे? बॉ मैयर ल मैयर, मोवे पीर ल पीर. क्या बोलेंगे हम लोग?
Bo Mayer Lamayer Move Pir Lapir. Bo Mayer Lamayer Move Pir Lapir. So good, better, best, bad, worse, worst. तो आप लोगों को चाहिए तो आप स्पेलिंग वेलिंग लर्न कर लो. और ये सारे एडजेक्टिव है. बॉ मयर ल मयर मोवे पीर ल पीर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स है. एडजेक्टिव्स आर फ्लेक्सिबल, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन. चलो ग्रेट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग बैक टू द टेक्स्ट बुक. I hope you guys have copied down everything that I'm saying. Yes, sir. Great. Yes, sir. अच्छा, ये एडवर्ब ये दोनों इसके आजू बाजू थे. मैं कब से यहाँ से लेके सर्च कर रहा था. हाँ, ये जो मेरा वर्ड फाइल है, तुम लोग बिलीव नहीं करते. ये वर्ड फाइल कितने पेजेस का? ऑलमोस्ट 114 पेजेस के वर्ड फाइल है. सोचो, ये मैंने जब अब ये ऑनलाइन में जब मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेता हूँ ना, यूजुअली देखो यहाँ पे यू गाइस कैन सी इट ओवर हियर. यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखो पेज नंबर लिखा हुआ है. यहाँ पे 70 पेज आउट ऑफ 114 है ना. सो ये जो टेक्स्ट, ये जो पीडीएफ फाइल है ना, वर्ड फाइल, इसके अंदर सारे, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना जूम पे, तो मैं यही पीडीएफ फाइल ओपन करके इसमें सारे आंसर्स वगैरह लिखता हूँ. तो मेरे पास सारे के सारे हर एक्सरसाइज से सारे आंसर्स या सब रूल्स वगैरह इस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है. 114 पेजेस, मतलब जब से मैं लॉकडाउन से लेक्चर दे रहा हूँ उतने में मैंने 114 पेज और टाइप किए पूरे के पूरे. फिर बाद में अगर मुझे कुछ भी सर्च करना होता तो मैं फाइंड में जाके सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे डायरेक्टली वो पार्ट मिल जाता है. सो अगेन दैट पीडीएफ फाइल इज, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये ऑनलाइन चीज होना तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हुई है लाइफ में. उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता. So let's start. First, Leroy या Mumbai. So the roads in Mumbai are better than the roads in the village. बताओ स्टूडेंट्स, ये जो ये सेंटेंस है क्या है? कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? टेल मी दैट. Comparative. इट्स अ कंपैरेटिव डिग्री. इट्स अ 1-to-1 कंपैरिजन. मुंबई के रोड को हमने किसके रोड से कंपेयर किया है? Village. या विलेज के रोड से. फाइन. और बच्चे लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, रूई, रूई इज अ फेमिनाइन प्लूरल. तो देखो ये मैयर में भी उन्होंने एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा एस लगा दिया, बिकॉज मैंने अभी जस्ट बताया था एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का क्या होता है स्टूडेंट्स? दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन. बराबर. नेक्स्ट आफ्टर दैट, पोल्यूशन इन द सिटी इज वर्स देन द पोल्यूशन इन द कंट्री साइड. यहाँ पे पीर, तो पोल्यूशन फेमिनाइन नाउन है स्टूडेंट्स, लेकिन ये पीर के लास्ट में ऑलरेडी ई आता है, तो फिर और एक ई नहीं लगाएंगे हम लोग. चलो, एंड लास्ट, Marisa Piera is the best dancer of my class. So देखो, जब भी सुपरलेटिव होगा तो ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ला मैयर आएगा, बिकॉज अब ये एक्सेप्शन है. तो हम लोग यहाँ पे वो प्लू मुआ वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे. क्यों अप्लाई नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन. सो Marisa Piera is the best. मैयर, ला मैयर का मतलब क्या? द बेस्ट हो गया इन माई क्लास. इजी स्टूडेंट्स. तो चलो चलो फटाफट हम लोग एक बार वापस लास्ट टाइम रिवाइज कर देंगे. कंपैरेटिव डिग्री में 1-to-1 कंपैरिजन होगा, सुपरलेटिव में 1-to-all होगा. कंपैरेटिव में स्टूडेंट्स क्या होगा? प्लू प्लस एच प्लस क, मुआ प्लस एच प्लस क, ओसी प्लस एच प्लस क, मोर देन, लेस देन, एज. ओके. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स व्हाट डू वी हैव? देन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या आना चाहिए? डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू मुआ प्लस एच प्लस पार्टिसिपल आर्टिकल. चलो मैं किसी को क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. I'm taking some random name. I'm to see if you guys remember or not. Akshata, you there? Akshata Rane? Yes, sir. Akshata, बताओ मुझे सुपरलेटिव के रूल्स बताओ बेटा. Definite articles plus mua plus partitive article. Very good बेटा. आपने कॉपी तो नहीं किया ना? No. Great. चलो. Next is, let me just find some name. किया ना? आप बताओ. चलो मुझे कंपैरेटिव डिग्री का रूल बताओ. Comparative degree be MOIS plus adjective plus que in bracket less than, and plus adjective plus que is more than, or is plus adjective plus que is as. Okay, very good. Sajid, are you there? Yes, sir. Go for it. सब बताओ. Yes. Okay, comparative plo plus adjective plus ka is more than, and then MOIS plus adjective plus ka is less than, and then AUSSI plus adjective plus ka is as good as. Or then for superlative,
it is a definite article plus flow या more plus adjective plus partitive article. ग्रेट, चलो नाइस। ठीक है, अभी मेरे अकॉर्डिंगली सबको समझ गया होगा, अभी इसमें कुछ नहीं समझना, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मोस्टली स्टूडेंट्स एकदम मोस्टली सबसे ज्यादा ये इंग्लिश टू फ्रेंच में आता है। ओके, इंग्लिश टू फ्रेंच में आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके लास्ट में 2 मार्क के लिए आ सकता है एंड दे विल गिव यू एनी सेंटेंस और आपको ये आना चाहिए। You can't do it. Dual that it won't come and dual that it question. बट आपका आवाज बहुत लाउड है एकदम ही, थोड़ा सा आराम से बोलो, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है, वापस बोलो अच्छे से। In dual directed question it won't come. बेटा आ तो कहीं भी सकता है, मैं सिर्फ अपने Okay. एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मोस्टली ऐसा नहीं, Okay. फिर कल आके आ गया तो आप बोलो कि नहीं सर आपने रॉन्ग बोला था, ठीक है। Okay. कुछ भी कहीं भी आ सकता है, उनका मर्जी, भगवान जाने, है ना। बट लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब लास्ट मेरे को याद है 12 साल के पेपर्स तो मैंने अपने आंखों से देखे हुए, फ्रेंच के पेपर्स, है ना। सर आप पेपर सेट नहीं करते क्या? नहीं, आई एम नॉट इनटू एनी कॉलेजेस और एनीवेयर, एनी यूनिवर्सिटी और एनीवेयर लाइक दैट। इट्स बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम रनिंग माय क्लासेस। तो ये सब पेपर करेक्शन और पेपर सेटिंग वाला काम ये कौन करता है? कॉलेजेस टीचर्स, स्कूल टीचर्स वगैरह करते हैं, या तो फिर वो सब होता है, या यूनिवर्सिटी में इफ यू गेट सम पोस्ट आल्सो। सो माय प्लान इज नॉट टू टेक दैट एनी टाइम। तुम लोग, होता है मैं जब लॉ कर रहा था ना, आई वाज इन मिठी, आई वाज डूइंग 5 ईयर लॉ, तो मेरे डैड के एक फ्रेंड थे ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसके डैड है ना, वो बहुत ही लॉयर, मतलब बहुत ही बड़े लॉयर है। ओके, उनको हर बार जज बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब नॉर्मली जो अच्छे लॉयर्स होते हैं उनको जज के लिए ऑफर आता है, देन यू बिकम जज, बट देन ही नेवर बिकेम जज, ऑल हिज लाइफ ही नेवर बिकेम जज। व्हाई? बिकॉज लॉ, वो एक खुद मतलब लॉ फर्म चला रहे थे एंड ही वाज अर्निंग इन करोड्स। अगर जज बन जाएंगे ना, तो जज में कैसा आता है, देन इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, क्या मिल जाएगा महीने का, 4-5 लाख मिल जाएगा, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जबकि वो तो बहुत ज्यादा हाई पोस्ट, मतलब एकदम बहुत बड़ा बिजनेस लेकर ही वाज अर्निंग लैक्स एंड करोड्स। सर आपके लॉ की एंट्रेंस थी क्या? नहीं, हम लोग के टाइम लॉ के एंट्रेंस नहीं थी। आई गॉट माई लॉ एडमिशन थ्रू माई 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बट 2 years later on, after I completed my law, my 12th standard, ये MHCT तभी आया था। क्लैट भी MHC या MHCT, क्लैट, LSAT, नहीं ये क्लैट तो तभी भी था, क्लैट LSAT वगैरह तभी भी था, ये MHCT नहीं था, ये MHCT अभी नया आया है। तो I have students to whom I prepare for MHCT also. यूजुअली मेरे 12th के जो बच्चे होते हैं, तो वो जो एक बुक है पूरी क्लैट की बुक है, यूजुअली हम वो पूरा सॉल्व करते हैं कंप्लीटली। सर पूछ सकता हूँ आपसे? क्या? आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट द एंट्रेंस। या बोलो। तो मेरी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या करूँ? मतलब कुछ अभी आपके वो एक बुक खरीद लो, उसमें से पढ़ लो, बिकॉज आई रियली फील कि एवरेज मार्क्स ही आते हैं। जो बच्चे लोग लास्ट 1 महीना पढ़ते हैं ना, वो 150 में से कुछ 100 मार्क आते हैं, 105 आते हैं, 90, 85 आते हैं। बट देन इफ यू आर विलिंग टू गो टू GLC कॉलेज के लिए लोग ट्राई करते हैं 120, 125, 30 तो चाहिए मिनिमम, देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु स्टडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड, और उनको लॉ का नॉलेज वगैरह भी होता है, देन इट बिकम्स अ लिटिल मोर इजियर फॉर दोस पीपल टू स्कोर बेटर मार्क्स। Honestly, I haven't seen anybody studying just last 1 month and getting 130. क्या मतलब आगे क्या? NLUs का मैटर करता है कुछ? मतलब आप क्या बोले? आगे नहीं, मतलब मैटर कॉलेज करता है। थ्रू एंट्रेंस एग्जाम you get good college. If you pass out from good college, then obviously it does matter. One of my friends got into Tyndall University. Oh, Chinese University, wow. तो मुझे लगता है अगर तुझे क्लैट वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, then you really need to focus on CLAT right now rather than focusing on 12th standard, because 12th में अच्छे मार्क्स, थोड़ा नॉर्मल decent marks से पास हो जाओ, that's it, and your concentration should be right now on your this MHCT and CLAT and all those things only. Okay sir. हाँ, तो coming back on the fact that ये जो पेपर सेटिंग फ्रेंच वगैरह जो होता है ना, तो मेरा तो फंडा क्लियर है, अगर ऐसा कभी कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिला तो आई एम नॉट टेकिंग इट। तो मतलब मेरा तो ऐसा है प्लान कि you ask me what do I want to become, then I want to become a good businessman. I'm not looking out to become a good teacher or to go somewhere ahead in this line. और मतलब और विजडम के ब्रांचेस ओपन करो, विजडम को ग्रो करो और ऐसे बिजनेसमैन बनो। सर आप रियल एस्टेट में भी हो क्या? देख, मेरे पास बैंक में गिन के 10-15 हजार रुपए है, अब अगर उसने में रियल एस्टेट खुलता होता तो मैं खोल देता। सर शार्क टैंक पे चले आओ। नहीं, नॉट राइट नाउ लुकिंग। मेरे को आज ही क्लास में कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर आप देख रहे हो क्या? नो आइडिया अबाउट शार्क टैंक एट ऑल, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। पैसा कमाना है फिलहाल उम्र में ब्रो,
सक्सेसफुल बनना है, बहुत टाइम है। चलो ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस। आप लोग के रिव्यू के अंदर ये एक्सरसाइज नंबर 1 2 की हुई है या नहीं की हुई है? टेल मी दैट। यस नो? मेरी की हुई है। Even I have नहीं done नहीं, so. कुछ half is done. Even I've done. चलो तो देखो, मेरे ख्याल से तुम लोग को अगर ये खाली इस एक्सरसाइज में कुछ डाउट तो तुम लोग पूछ लो। बाकी अगर ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं थोड़े बहुत सेंटेंसेस ढूंढ के लाऊंगा। ये कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में ना? जस्ट गिव मी वन सेकंड, मेरे पास सेकंड चैप्टर का कुछ एक पीडीएफ तो है। अगर उस पीडीएफ में अगर हमको कुछ मिल गया बाय चांस तो लकी। जस्ट वन सेकंड। ये मेरे लॉकडाउन की मेहनत है पूरी। So you can check the worksheet. When the worksheet will be something for us. क्या बोला बेटा? आपको नहीं समझा मेरे को? You can check the worksheet. Worksheet. नहीं, वर्कशीट के अंदर नहीं है बेटा, मुझे पता है। Okay. नहीं है मेरे पास। देखो ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी एक वर्कशीट है मेरे पास, थर्ड चैप्टर में भी एक पीडीएफ फाइल वर्कशीट है मेरे पास, फोर्थ में भी एक पीडीएफ फाइल वर्कशीट है, पर मेरे पास सेकंड में नहीं है। और वो सेकंड वाली कहाँ चली गई पता नहीं। ठीक है चलो स्टूडेंट्स, वो वाली वर्कशीट नहीं है अभी। अगर बाद में नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगी तो मैं ढूंढ के रखूंगा उसको। तुम लोग ये व्हाट पेज नंबर इज दिस? ओके, दिस इज पेज नंबर 57 इटसेल्फ। तुम लोग एक बार देख लो पेज नंबर 57 पे ही अगर तुम लोग को ये दोनों एक्सरसाइज आ रहा है तो फेयर इनफ, इट इज फाइन। जो हमने अभी जस्ट रूल्स वगैरह किए थे उतने लिए काफी है। सर वो फर्स्ट वाले का फोर्थ और फिफ्थ आंसर क्या है? हेलो बेटा ये जो फर्स्ट वाले का जो फोर्थ है ना, सॉन्ट्रे जॉर्ज पोम्पिडू इज अ वेरी 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 मॉडर्न म्यूजियम अभी मतलब, लेकिन लूवरे म्यूजियम तो बहुत सेंचुरीज से है। सो इधर प्लू आएगा, मोर मॉडर्न। सो सॉन्ट्रे जॉर्ज पोम्पिडू इज मोर मॉडर्न देन लूवरे म्यूजियम। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको प्लू आएगा, प्लू मॉडर्न का आएगा, प्लू मॉडर्न को। नेक्स्ट आफ्टर दैट अगर लास्ट कबड्डी देखोगे तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप खाली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो शायद कबड्डी थोड़ा फेमस हो सकता है, बट आई गेस ओवरऑल तो ऑब्वियसली फुटबॉल इज मोर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। सो MOINS मोर पॉपुलर को। So I would go for football. Okay, maybe football is more popular all over the world. फुटबॉल ही So- ज्यादा पॉपुलर है सर। हाँ obviously. So kabaddi is less popular than the football. Okay, ऐसा मैंने लिखा है। ये देखो, ये वेटिकन सिटी वाला मुआ वाला था, लीस्ट वाला था। ये जो VC मतलब वेटिकन सिटी लिखा है, ठीक है। इज फिर क्या आना चाहिए? अपना डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए प्लस प्लू या मुआ आना चाहिए। मुआ है ना, यहाँ पे मुआ आएगा, मुआ ग्रॉ पेई और फ्रांस ना फेमिनाइन है तो फ्रांस फेमिनाइन तो दला आएगा, दला। सो वेटिकन सिटी इज द लीस्ट मतलब सबसे कम बड़ी है, मतलब या तो Smallest. शॉर्टेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फ्रांस। ये ऑफ फ्रांस नहीं, वर्ल्ड आएगा, ऑफ द वर्ल्ड ना। ओ सॉरी, मैंने वो फ्रांस वाला बता दिया। ऑफ द वर्ल्ड DU में आएगा, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज अ मैस्कुलिन नाउन इसलिए DU आएगा। वेटिकन सिटी इज द शॉर्टेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जितने भी सेंटेंस है सब अंदर स्टूडेंट्स हमारा क्या आना चाहिए? देखो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल में भी देखो डेफिनेट आर्टिकल है, फिर प्लू है, फिर एडजेक्टिव है, फिर पार्टिसिपिव आर्टिकल है। चार चीज तो होगी फिक्स है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। नीचे सेम ये थोड़े इरेगुलर वर्ब्स और दिए हुए आप लोग को लर्न कर देना है। एनीबडी कैन टेल मी? देखो यहाँ पे दो वर्ब्स दिए हुए पेज 57 58 पे, कोनेत्र और सावर दिया है। अच्छा उसके पहले कॉन्जूगेट वर्ब दिया ना स्टूडेंट्स, कॉन्जूगेट मींस टू ड्राइव होता है। कॉन्जूगेट की तरह एक और वर्ब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ब है, मार्केट वहां पे लिखना तो वहीं पे लिख दो। त्रादवी टू ट्रांसलेट, इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। त्रादवी से and last is tradviz. Translate. सर उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वो IT वाला है ना? हाँ, जैसे यहाँ पे कौंधवी का कौंधवी है तो त्रादवी हो जाएगा। ट्रांसलेटेड पास्ट पार्टिसिपल, त्रादवी तो ट्रांसलेटेड हो जाएगा, ट्रांसलेटेड। ओके, कोनेत्र दिया स्टूडेंट्स, कोनेत्र मींस टू नो,
important, very very important, cone 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 so cone se cones cones, je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elle connaissent. So और कोनेस का कोन्यू है. चलो बच्चे लोग बताओ कोनेत्र और सावर में क्या फर्क है. नीचे सावर वर्ब दिया हुआ है. What is the difference between कोनेत्र and सावर? मतलब इंफॉर्मेशन या फिर स्किल के लिए होता है. Yeah, exactly. Just give me 1 minute. 1 minute. Okay. So क्या आएगा स्टूडेंट्स? कोनेत्र इज फॉर प्लेस एंड पर्सन और सावर स्टूडेंट्स क्या होगा, वो किसी फैक्ट्स के लिए होगा, कोई फैक्ट्स के लिए होगा. आगे से कही तो एक एक्सरसाइज भी थी सावर और उसकी हम वो करेंगे. एंड वीवर अगेन, वीवर इज इरेगुलर वर्ब स्टूडेंट्स, जो आपको लर्न करना है. वी 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 वीआईएस वीआईएस वीआईडी वीआईटी वीआई वीएनएस वीआई वीजेड वीआई वीएनटी वीआई वीएनटी. मुझे खाली वो एक एक्सरसाइज देखनी जहाँ पे ना हाँ कोनेत्र और सावर में हमको ऑप्शंस दिया था. हाँ, लेट्स सॉल्व दिस. पेज नंबर 59. Tell me question number 3, first one students. I know Pierre. दोनों का मतलब नो ही होता है. सावर का मतलब भी नो होता है, कोनेत्र का मतलब नो होता है. तो स्टूडेंट्स I know Pierre. यहाँ पे क्या आएगा आंसर? फर्स्ट वाला कोने आएगा, है ना. I je connais Pierre. मैं je ne dash pas. But I don't know where he stays. तो ये तो एक फैक्ट है, बट मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है. So I know Pierre, but I don't know where he stays. तो पहले कोनेत्र आएगा, फिर सावर आएगा. Is it simple? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Second one. Dash to nager. Okay. So do you know to swim? So again, this is a fact. Okay. तो say आएगा. Say tu nager. Do you know to swim? Third one, les élèves. The kids know that their professor is absent today. Okay. तो ये भी एक फैक्ट है, तो साव आएगा, साव. Okay, so the kids know that their professor is absent today. Fourth one. Also, why will become okay, the third one. So my third one is from 7 in my book. I'm written CONNAISSENT. No, बेटा सावी आएगा. The kids know that their professor is absent. तो ये फैक्ट है, उनके प्रोफेसर एब्सेंट है. ऐसा नहीं बोल रहे that they know their professor. Okay. So Fourth means what? Connaissant means बेटा कोनेत्र का कॉन्जुगेशन है, नो ही होता है. Okay. Fourth one. Dash will the Lyon. So that is, do you know the city of Lyon? तो चलो कोने से लिखेंगे यहाँ पे CONNAISSEZ. कोने से वो la ville de Lyon. So do you know the city of Lyon? Do you know the city of Lyon? And last, we know every. अच्छा, tools मतलब students क्या होता है? Tools मतलब everything होता है, everything. Okay, तो यहाँ पे no सावो आएगा. We know everything here. We know everything in this small city, small village. We know everything in this small village आएगा. SAVONS. सर कोनेत्र आएगा ना, प्लेस है ना वहाँ पे. We know every place कहाँ है बेटा? Every देखो, अगर everyone होता, तुलमोन होता तो बेटा everyone होता तो मैं कोनेत्र लिखता, ठीक है. If we know everyone in this small city. अगर TOUT होता, अगर समझो TOUT होता मतलब everything होता है, everything. अब ये TOUS है, तूस मतलब तूस is has to be we know everything ही आएगा in this small city. तूस का मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो सकता है मुझे बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे. तुलमोन होता तो everyone होता. Let's keep it Savo itself. Okay, we know everything in this small city. Okay. Chalo. So students, more or less we are going to done with this part over here. इतना पार्ट और हम लोग इस लेक्चर को भी यहाँ पे फिनिश ही करेंगे. हमने देखा जाए तो हमने आज क्या क्या किया है स्टूडेंट्स. हमने शुरुआत में इंटरोगेटिव वाला पार्ट थोड़ा सा किया था. हमने फर्स्ट चैप्टर के थोड़े बहुत इरेगुलर वर्ब्स और सेकंड के भी इरेगुलर वर्ब्स देखे हैं. हमने एडवर्ब्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया है. और हमने कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाला जो पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट किया है आज के लेक्चर में. थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस सॉल्व किए, नो डाउट विद एवरीथिंग. ओके, इज दैट ओके स्टूडेंट्स? Sir, I have one doubt. या किया ना, टेल मी.
So I didn't understand on page 59. The fourth one, why is it corner says? Which one? 59 first one. No, number 4. Number 4. Huh. बेटा क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? Savage. In my textbook I wrote Savage. What's wrong with your textbook? क्यों बेटा सावे क्यों आना चाहिए मुझे बताओ? मीनिंग Because बताओ इसका. talking about a place, right? It's saying it's बेटा talking- प्लेस में क्या आएगा? it- सावा it- आता है कि कोनेत्र आता है? Conetra, but it's not information. No बेटा. Okay. Okay, fine. Now can you explain वही वाली एक्सरसाइज में फिफ्थ सेंटेंस? बेटा फिफ्थ सेंटेंस को यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस वर्ड. ये जो टूस वर्ड है ना, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है फिलहाल. तो अब ये टूस का व्हाट इज द एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इज द मोस्ट ऑल एवरीथिंग. या ऑल या एवरीथिंग. तो इफ वी नो एवरीथिंग, तो अगर मैं एवरीथिंग बोलूंगा बेटा ऑल एवरीथिंग है ना, सो वी नो एवरीथिंग, तो बेटा फिर क्या आएगा? अगर एवरीथिंग होगा थिंग तो फिर सावो आना चाहिए. बराबर. वी नो एवरीथिंग इन दिस स्मॉल सिटी. अगर यहाँ पे अगर समझो तुलमॉन होता, अगर इंग्लिश में तुलमॉन होता, तुलमॉन का मतलब क्या होता है? एवरीवन. अगर एवरीवन होता तो मैं फिर क्या लिखता? मैं कोने सौ लिखता. वी नो एवरीवन. ओके सर. बट फिलहाल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एवरीथिंग हो रहा है, इसलिए हमने सावो डाला है. ओके. चलो ठीक है. So what is VILLE? सिटी. Okay. So it is talking about place. That's why it's connoisses. यस. Okay. चलो ठीक है. स्टूडेंट्स अभी हम आई गेस वी आर मीटिंग टुमारो अगेन, राइट? टू वेडनेसडे एंड देन वी आर गोइंग टू मीट ऑन फ्राइडे. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you so very much. It was nice having all of you. अगर आप लोगों के पास कुछ भी वो टॉपिक जो आप बताए थे मुझे व्हाट्सएप करके रखना, so that we can discuss in the class. और अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अगर और टॉपिक करना तो प्लीज लेट मी नो. ओके, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंगली मैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले ग्रामर कंप्लीट करूंगा. ग्रामर कंप्लीट करने के बाद फिर हम वो जब देखेंगे राइटिंग स्किल्स और थोड़ा सा सिविलाइजेशन पार्ट वगैरह कर लेंगे. ठीक है? Okay, sir. ओके. क्योंकि हम थोड़े बहुत ग्रामर टॉपिक्स पीछे के रिवाइज करते जाएंगे हर लेक्चर के अंदर. पास से कंपोज वगैरह डिफिकल्ट टॉपिक्स है तो हम वापस थोड़े बहुत रिवाइज करेंगे. प्लान ये भी है कि किसी दिन एक पेपर लेके बैठेंगे और एक पूरा पेपर साथ में सॉल्व करेंगे. ओके. Okay. एक रैंडम पेपर कोई भी ले लेंगे जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली पेपर है ना, उसको सॉल्व करेंगे. तो ये भी मेरे मन में है. आई फील इफ यू आर गोइंग विद दिस पेस 3 लेक्चर्स अ वीक ना, तो हम वो सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे. और अगर आपके माइंड में कभी कुछ और भी हो तो आप मुझे बता सकते हो. थैंक यू सो मच. इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू. बाय बाय. हैव अ गुड नाइट. Bye. Good night. Thank you. बाय. गुड नाइट. Bye bye. बाय. Bye, sir. बाय बाय. थैंक यू. बाय. Bye, sir. बाय. थैंक यू. बाय बाय.